So friends, at the start of the session, let me tell you about the offer for both the iconic and plus subscribers. So हमारी ऑफर जो है ये एंड होने वाली ऑन 25 जुलाई 2021 संडे. So offers क्या है देखिए, it is exciting mega offer for CBSE classes from class 6 to class 12th. So offers are like that. If you are having the CBSE subscription, then you are going to have the free CBSE subscription. Likewise, if you are having the subscription for 12, 15, and 80 months, then you are going to have the free subscription for the 2 months. Then if you are having the subscription for 24, 36, and 48 months, then you are going to have total free CBSE subscription for 4 months. And if you are having the subscription for 60, 72, and 84 months, then you are going to have the free CBSE subscription for the 6 months. सो सेम केस फॉर द फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है. देखिए वहां पर क्या ऑफर्स है आपके लिए. इफ यू आर हैविंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 12, 15 एंड 18 months, then you are going to have the free subscription for the 2 months. And likewise, if you are having the 24, 36, and 48 month subscription, then you are going to have the total free subscription of the 4 months. And lastly, if you are having the 60, 72, and 84 month subscription for the Creative Corner, then you are going to have the free Creative Corner subscription for the 6 months. So देर किस बात की है स्टूडेंट्स, टाइम चला जा रहा है तो just be quick and enroll for the our iconic plus and subscriptions. Then you are going to have the flat 10% discount on purchasing plus subscription for all the durations. Yes. Let me tell you about the CBSE latest guidelines which are live on the Unacademy. देखिए अभी आप लोगों को तो पता चला होगा कि CBSE का जो इस साल का पैटर्न जो है कोरोना की वजह से चेंज हो गया है. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द न्यू बैचेस फ्रॉम द 19th ऑफ द जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो ये बैचेस किसे रही देखिए. आपको तो पता है द टर्म 1 विल बी सून टू ओवर. द टर्म 1 एग्जामिनेशन इज गोइंग टू अप्रोच इन 3 months itself. So हमारी जो बैच है this will be totally dedicated to the term 1 itself. And yes, it is completely aligned with the new CBSE guidelines. अभी न्यू जो CBSE guidelines गवर्नमेंट ने जो दी है, CBSE ने जो दी है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सिलेबस है वो क्रिएट किया हुआ है. एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लेक्चर्स बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइंस itself. And yes, obviously all the subjects are going to be included there. And yes, the most benefit that is you are going to have the mode of conduction or mode of delivery in Hindi as well as English language. So there किस बात की है, just subscribe to our channel. And yes, obviously you can have the both the plus as well as the icon subscriptions also. So today we are going to start with our class 10 information technology code 402 under NSQF. सो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ICT स्किल्स, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स. एंड आज के लेक्चर में अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाला टॉपिक दैट इज बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस. जी हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर तो आप सभी लोग यूज करते हो. उसका कैसा यूज करना है ऑलमोस्ट आप सबको पता है. बट कुछ बहुत ही छोटी छोटी बारीक चीजें होती है रिगार्डिंग कंप्यूटर. दैट इज हाउ टू मेंटेन द कंप्यूटर, हाउ टू क्लीन इट, हाउ टू हैव एंटीवायरसेस फॉर इट. सो ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. देखिए लेक्चर आज का जो है बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही जरूरत है. क्योंकि देखिए आपके पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, बच्चों को ज्यादातर पता नहीं होता है उसको कैसे यूज करना है, कैसे हैंडल करना है. और उसमें क्या हो जाता है, आपके लैपटॉप है या फिर आपका PC है या फिर आपका मोबाइल जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी डैमेज हो जाता है. सो आपके कंप्यूटर की या फिर आपके लैपटॉप की अगर आपको लाइफलाइन अगर बढ़ानी है तो उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली करना ही चाहिए. Otherwise it will be damaged earlier rather than its lifetime. So आज के कंटेंट्स में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेंटेनेंस. व्हाट इज कंप्यूटर मेंटेनेंस, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर मेंटेनेंस, देन क्लीनिंग द कंप्यूटर्स, दैट इज क्लीनिंग द कंप्यूटर, देन प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, एक शेड्यूल कैसे बनाते हैं, देन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस जो कि सॉफ्टवेयर है. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, hardware as well as the software parts. So these both parts we are going to see in today's lecture itself. So let's get started with today's topic. So first one, what is the computer maintenance? Okay, अगर हम लोग किताबी definition के लिए जाएंगे तो what is computer maintenance? Computer maintenance is an essential thing and every computer user must know about the basics of the computer maintenance. That is how to have the computer clean, how to keep the computer clean, how to keep the computer neat and clean. So ऐसी चीजें जो है हम लोग आज के लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं. So हम लोग क्या करेंगे, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी
वेरी बेसिक स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड हाउ यू कैन परफॉर्म दे। ठीक है, छोटा बच्चा भी इसको बहुत ही आराम से कर सकेगा, वैसे स्टेप्स हम लोग देखने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इजी है और हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर मेंटेनेंस रिफर्स टू द एक्शन carried out so as to keep a computer in a good state of working। गुड स्टेट ऑफ वर्किंग मतलब क्या? एक कंप्यूटर जो अच्छे से रन हो, उसका हार्डवेयर ठीक से प्रॉपर से रन हो, उसके सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक से रन हो एंड एज पर आवर टाइम उससे क्विक रिस्पॉन्स हमको मिले। दैट इज नथिंग बट दी कंप्यूटर वर्किंग इन अ गुड स्टेट। सो इसमें क्या क्या होते हैं? देखिए, कंप्यूटर मेंटेनेंस इंक्लूड्स फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लीनिंग, देन इंटरनल क्लीनिंग, देन कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स आल्सो। सो देखिए, फिजिकल क्लीनिंग में पहले क्या पॉइंट आता है? देखिए, फिजिकल क्लीनिंग सो एज टू रिमूव द डस्ट, देन डबल एंड एज दिस टू हिट अप अ कंप्यूटर। जो डस्ट जो होती है आपके कंप्यूटर पे जमा हो जाती है, देर आर सम सो मेनी थिंग्स विच कॉल लाइक वाइज, कभी कभी आपसे पानी भी गिर जा सकता है कंप्यूटर पर। सो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल क्लीनिंग के अंदर आ जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द इंटरनल क्लीनिंग। देखिए, इंटरनल क्लीनिंग क्या है? सो एज टू कीप कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स वायरस फ्री। देखिए, आजकल जो है वायरस बहुत बढ़ जाते हैं, जितना आप लोग नेट यूज करोगे उतना ही आपके कंप्यूटर पर वायरस थ्रेट हो सकता है। देन you must know that it's the Pegasus virus which is spreading all over in the world। सो वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। सो ये सारी चीजें जो हमको क्लीन करनी है ये सब आ जाती है पूरी की पूरी इंटरनल क्लीनिंग में। एंड फिजिकल क्लीनिंग मीन्स आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। सपोज आपकी कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे डस्ट जमा हो गई, आपका मॉनिटर है, मॉनिटर पे डस्ट जमा होगी, ये सारी चीजें जो है वो क्या आ जाती है? फिजिकल मेंटेनेंस में आ जाती है। सो द नेक्स्ट वन थिंग इज कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। सो ये सारी चीजें जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर सो मेनी टाइम्स इट इज चांस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी पूरी क्रश हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रश हो गए तो आपका डेटा भी जो है वो क्या हो सकता है? वैनिश हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो भी वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको बैकअप जो है वो बैकअप रखना बहुत ही जरूरी है एंड कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। क्योंकि जनरली क्या होता है, सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आ जाते हैं और पुराने वर्जन पे जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नीड टू कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड ऑब्वियसली योर प्रोग्राम विच यू आर यूजिंग हियर। So an unmaintained, what we can say, an unmaintained computer may not run properly. Thus, for a computer to work effectively, regular component maintenance is obviously required. So what we can say that a computer maintenance is going to keep your software in a good state as well as hardware in a good state of working। So कंप्यूटर मेंटेनेंस में दोनों चीजें आती है। देखिए, कंप्यूटर मतलब सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं आएगा, उसका हार्डवेयर के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर जो है दैट इज फिजिकल क्लीनिंग एज वेल एज इंटरनल क्लीनिंग। ये दोनों चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कीप योर कंप्यूटर प्रॉपरली रनिंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। यस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस? Likewise, देखिए स्टूडेंट, a computer not maintained properly may run slow or prevent some programs for running or may not run at all। सो देखिए, अगर आपका कंप्यूटर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया होगा तो उससे क्या हो सकता है? एक तो आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है और दूसरी बात जो है कुछ प्रोग्राम जो उसके उसमें से रन नहीं होगी या फिर कुछ भी उसमें से रन नहीं होगा। ऐसे हो जाता है आपके हार्ड डिस्क जैसे कि क्रैश हो जाती है। वो हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश होना मतलब उसके अंदर के सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, आपके ओएस ठीक से नहीं चलती है, कोई प्रोग्राम आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं वो रन ठीक से नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें जो है वो क्या आती है? आपको स्टॉप करती है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रॉपरली रन करने से। सो what we can say, the computer maintenance is necessary for some of the reasons, like the computer maintenance, what it does, it detects issues early before they become problems। इसका मतलब क्या है? देखिए, कंप्यूटर मेंटेनेंस अगर आप लोग प्रॉपरली करते हो तो उससे आपको क्या मिल जाता है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है ताकि उससे कोई आपके कंप्यूटर को हार्म ना हो, कोई हानि ना हो। सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर मेंटेनेंस इज very much important to detect some issues or some problems which you are facing there।
Then next one is what we can say, the computer maintenance prevents against viruses and malwares. ठीक है, वायरस जो है टोटली सॉफ्टवेयर पार्ट आता है, मालवेयर भी जो है टोटली सॉफ्टवेयर पार्ट आता है। देखिए अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर पर अटैक करता है तो उससे बहुत ही नुकसान हो सकता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर की फाइल है वो डिलीट हो जा सकती है, या फिर कुछ कॉपीज जो है आपका पर्सनल डेटा जो है कभी कभी इंटरनेट पे उसके क्या बोल सकते हैं, उसके थेफ्ट के भी बहुत चांसेस होते हैं। सो अगर आप लोग प्रॉपरली कंप्यूटर मेंटेनेंस करते हो तो वो क्या करता है, it is going to prevent against viruses and malwares. Then next point is the computer maintenance speeds up your computer. Obviously अगर आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस ठीक से रन कर रहा है, दैट इज अगर आपका कंप्यूटर जो है वो स्पीड्स करना है तो उसके लिए मेंटेनेंस जो है कंप्यूटर का वो ठीक से आपको करना पड़ेगा। Then next one is the computer maintenance keeps your operating system and other important softwares like antivirus up to date. यस अगर वायरस है तो ऑब्वियसली आपको एंटीवायरस जो है वो यूज करना पड़ेगा टू कीप योर कंप्यूटर प्रॉपरली रनिंग एज वेल एज टू स्पीड अप द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। सो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या करता है, इट कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक एंटीवायरस अप टू डेट। एंड लास्टली द कंप्यूटर मेंटेनेंस मैक्सिमाइजेस द सॉफ्टवेयर इफिशिएंसी। yes software efficiency मतलब क्या होता है, how much your software is going to run correctly, how much it is going to give the output correctly, that is nothing but the software efficiency there. so ये सारी चीजें जो है वो क्या आती है, कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंडर आती हैं, और because of having the computer properly maintained you can have all these things here. so I hope you understood what is the importance, ये क्यों होना चाहिए कंप्यूटर का मेंटेनेंस। सो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है, दैट इज इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द इश्यूज अर्लियर बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम्स, देन इट इज गोइंग टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स अगेंस्ट द viruses and malwares, then it is going to speed up your computer, and obviously it is going to keep your operating system and other important softwares like antivirus up to date, and lastly the computer maintenance maximizes software efficiency also. so पहले अभी हम लोग देखेंगे क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है वो कैसे क्लीन करने हैं वो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जैसे कि इंटरनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उसको कैसे प्रॉपरली हमको हैंडल करना है वो हम लोग देखेंगे। अभी देखिए ये पार्ट में वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है दैट इज फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो कैसे क्लीन करने हैं वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देखिए फिजिकल क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज डन बाय स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर फर्स्टली एंड आफ्टर शटिंग इट डाउन। ये सारी प्रोसेस जो है आप लोग करने वाले हैं, इसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपका कंप्यूटर जो है वो पहले स्विच ऑफ करना है, आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन करना है, और उसके बाद ही ये टोटल फिजिकल क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर विल बी डन। ऐसा क्यों करना है, देखिए फिजिकल क्लीनिंग के लिए आपका कंप्यूटर शट डाउन कंपलसरी करें, क्योंकि आपको क्या करना है, सपोज आपकी स्क्रीन क्लीन करनी है कंप्यूटर की, कीबोर्ड क्लीन करना है, माउस क्लीन करना है, तो शट डाउन कीजिए, क्योंकि इटमें चांस कि आपको कुछ ये लग सकता है, उसका झटका लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी पे और चार्जिंग समथिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज इट मे डैमेज योर कंप्यूटर हार्डवेयर ऑल्सो। सो जस्ट which we are going to see, that is first point is cleaning tools and guidelines for physical components. So ये हमारी जो है जनरल गाइडलाइंस है विच कैन बी एप्लीकेबल टू द एनी कंप्यूटर, बट समटाइम्स इससे भी थोड़ी आपको ज्यादा केयर लेनी पड़ती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो है हम लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जो है वो क्लीन करने के लिए यूज करना है। देखिए अभी कॉटन क्लॉथ जो है वी कैन ओनली यूज अ लिड फ्री कॉटन क्लॉथ when cleaning components such as the case or drive or what we can say a mouse, a keyboard. ठीक है, what we can see, don't use a cloth to clean the any circuitry like the RAM or the motherboard. देखिए आप लोग ये कॉटन क्लॉथ जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं, आपका पीसी के जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है या फिर माउस है, ये सारी चीजें जो है क्लीन करने के लिए आप लोग सिंपल एक कॉटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं। बट हाँ अगर आपके इंटरनल पार्ट्स जो फिजिकल कंपोनेंट्स है आपके सीपीयू के अंडर जो आते हैं, जैसे कि उसमें आता है रैम, उसके बाद आता है मदरबोर्ड, सो इसके लिए ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं यूज करनी है, बिकॉज दीज आर ए डेडिकेट कंपोनेंट्स। रैम जो होता है वो डेडिकेट होता है, मदरबोर्ड डेडिकेट कंपोनेंट होता है। सो व्हाट वी कैन सी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर that can be cleaned using the cotton cloth.
ओके, देन नेक्स्ट वन इज वाटर और रबिंग अल्कोहल। ठीक है, देखिए अभी व्हेन अ मॉइस्चरिंग क्लॉथ, इट इज बेस्ट टू यूज द वाटर और द रबिंग अल्कोहल। जैसे कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी सी खराब है, उस पर थोड़े से कुछ अगर डस्ट जमा हुई होगी या फिर देयर आर सम स्टेन्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, सो इसके बारे में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक रबिंग अल्कोहल होता है वो यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा वाटर जो है वो हम लोग उसको लगाकर ठीक से साफ कर सकते हैं, सो दैट द स्क्रीन विजिबिलिटी विल बी मोर देयर। देन नेक्स्ट वन इज द पोर्टेबल वैक्यूम। देखिए द पोर्टेबल वैक्यूम जो होता है, आप लोगों को पता है वैक्यूम मशीन जो होती है, वैसे एक छोटा सा पोर्टेबल वैक्यूम होता है जो कंप्यूटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। So the portable vacuum is used for sucking the dust, dirt, then hair, then some particles out of a computer. So however, you do not use a vacuum that plugs into the wall, since it creates a lots of static electricity that damages your computer. देखिए जो पोर्टेबल वैक्यूम जो होता है वो सिंपल बटन वाला आपको यूज करना है, उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वैक्यूम होता है वो आप लोग ना यूज करें, क्योंकि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कॉज द डैमेज टू योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। So it is always a good practice to use the portable vacuum so that it will remove the dirt, then dust, then hair from it. Then next one is the cotton swabs. देखिए the cotton swab will be moisturized with the rubbing alcohol or water, are the excellent tools for wiping hard to reach areas in your keyboard, then mouse and other locations. सो कॉटन से आप जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो आपके कीबोर्ड के जो छोटे से आपके, यू कैन सी द पार्ट्स आर देयर, देन माउस आर देयर, सो यू कैन यूज द रबिंग अल्कोहल वाटर विद दैट कॉटन स्वैप्स एंड यू कैन क्लीन इट वेरी इजीली। देन नेक्स्ट वन इज द फोम स्वैप्स। देखिए whenever possible it is better to use the lint free swabs such as the foam swabs। ठीक है, फोम स्वैप्स भी जो है हम आप लोग क्या कर सकते हो, जो फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो क्लीन करने के लिए आप लोग यूज जरूर कीजिए। देन लास्ट वन इज द क्लीनिंग ब्रश। ठीक है, आई थिंक यू नो अबाउट द क्लीनिंग ब्रश। आपके घर में भी बहुत सारी चीजों को, जैसे कि ओवन होगा, फ्रिज होगा या फिर टीवी होगा, उसके लिए आप लोग क्लीनिंग ब्रश यूज करते हो, कुछ नहीं यूज करते हो, नो प्रॉब्लम, but you while using a cleaning brush with the natural soft bristles, and it is good for cleaning dust and dirt from the keyboard also। देखिए आपका कीबोर्ड है, आप सिंपली इफ यू आर यूजिंग द क्लीनिंग ब्रश, आराम से उसकी सारी डर्ट जो है वो क्लीन हो जाएगी। सो these are some of the parts which you can use for the cleaning tools। ठीक है, जैसे कि कॉटन क्लॉथ होगा और वाटर और रबिंग अल्कोहल होगी, देन पोर्टेबल वैक्यूम्स आर देयर, देन कॉटन स्वैप्स आर देयर, फोम स्वैप्स आर देयर, एंड लास्टली क्लीनिंग ब्रश। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स है, बट दीज आर द जनरल tools which are used for maintaining the computer, which are used for cleaning the computers। Okay, I hope you understood this part। Then we are going to see some of the general guidelines for cleaning। So cleaning तो आपको करनी है, पर उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप्स होती है, एक प्रॉपर वे होता है। सो बाय यूजिंग दैट यू कैन क्लीन योर कंप्यूटर्स आल्सो। सो फर्स्ट वन इज दैट इज नेवर स्प्रे द स्क्वेट और एनी लिक्विड ऑन टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कंप्यूटर कंपोनेंट पे स्प्रे जो है वो नहीं करना है। सो उसके लिए क्या है, इफ अ स्प्रे इज नीडेड देन स्प्रे द लिक्विड ऑन टू द क्लॉथ फर्स्ट, एंड देन by rubbing that cloth on the computer component you can clean it। देखिए अभी आपको क्या करना है, सपोज अभी मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया पिछले स्लाइड में, कंप्यूटर के जो है आपको स्क्रीन क्लीन करनी है। सो as I have suggested in previous slide you can use water or rubbing alcohol, right? सो वाटर और रबिंग अल्कोहल आपको डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है कंप्यूटर कंपोनेंट पे। पहले क्या करना होगा, आपको एक क्लॉथ लेना चाहिए, क्लॉथ पर उसको स्प्रे करके लेना चाहिए, और उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी स्क्रीन जो है वो क्लीन कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द गुड गाइडलाइन फॉर हैविंग द क्लीनिंग ऑफ योर कंप्यूटर कंपोनेंट। देन नेक्स्ट, व्हेन क्लीनिंग अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, टर्न इट ऑफ बिफोर क्लीनिंग। सो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको आपका कंप्यूटर कंपोनेंट क्लीन करना है तो उसको क्या करिए कीजिए, पहले टर्न ऑफ कीजिए before cleaning it। So the next step what we can see,
दैट इज नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर। जी हाँ, आप लोग कितने भी ध्यान लग के वी आर ह्यूमंस, सो हमसे गलतियां होती रहेंगी, वी आर हैविंग सम एरर्स, हमसे मिस्टेक्स होते रहेंगे। सो टू अवॉइड इट हमें क्या करना चाहिए, अगर कुछ खाना या पीना हो तो आप लोगों को कंप्यूटर के साइड में जनरली ना खाया करिए, क्योंकि गलती से कुछ गिर गया तो इट मे cause the damage to the computer component also. So just try to avoid eating or drinking around the computer. So the next thing what we can see, that when cleaning, be careful to not accidentally adjust any knobs or control. देखिए जनरली आप लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं तो आप लोगों से ऐसे हो सकता है कि क्लीन करते वक्त, जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर ब्रश आप लोग कर रहे हैं वो कंप्यूटर पर, तो हो सकता है कि क्या होता है, कोई नॉब जो है आपसे खराब हो सकती है, नॉब का कुछ बटन जो नहीं दबाना है वो दब जाता है, और जो स्विच ऑन है उसको स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ सेटिंग्स होती है कंप्यूटर की वो खराब हो जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड all these things which are going to harm your computer. Then most we can see that do not use the harsh brushes. कुछ ब्रशेस हार्श होती है, वैसे कि आप लोगों को नहीं यूज करनी चाहिए। सो व्हाट वी कैन से फॉर फिजिकल क्लीनिंग ऑफ द इंटरनल पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड है, देन अदर सर्किट बोर्ड्स है और कंप्यूटर्स के, सो यू कैन यूज अ नेचुरल ब्रिस्टल ब्रश। जो नेचुरल ब्रश आती है सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होती है, and yes, you can have the compressed air blow to dust off it. Okay, so try to use the natural bristle brush also for cleaning the parts of the computers naturally. Then next one is never use anything harsh object such as a wire brush, and so rags are also discouraged because they easily snag an electric parts of the computer also. सो जो कुछ हार्श जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपको क्या करने हैं, कंप्यूटर का यूज बिल्कुल नहीं करने हैं। सो दीज आर दी सम जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग दी कंप्यूटर्स। आपसे जितना हो सकता है आप लोग उतना फॉलो करें, पर अगर आप सभी फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सो दैट इट विल इंक्रीज द कंप्यूटर्स लाइफ टाइम also both for software as well as hardware. So the next point what we can see that the general guidelines for computer maintenance. So देखिए, for maintaining your computer other than the physical cleaning, internal cleaning and regular computer updates are required also. So for we are going to see some of the guidelines for keeping your computer clean and maintained. Firstly, what we can say, keep the keyboard, mouse and openings clean. हमेशा अपना कीबोर्ड है, माउस जो है, जितने सारे ओपनिंग पोर्ट्स है आपके सीपीयू के हो या फिर लैपटॉप के हो, हमेशा क्लीन रखिए बाय यूजिंग सिंपल पिस्टल ब्रश आल्सो। देन नेक्स्ट वन इज जेंटली क्लीन मॉनिटर। अगर मॉनिटर को साफ सुथरा रखना है तो जेंटली क्लीन करिए। देखिए, कोई हम लोग बर्तन नहीं मांज रहे कि उसको बहुत ही हार्शली आप लोग यूज करें, जेंटली आपको जस्ट उसकी डस्ट जो है वो रिमूव करनी है। Then next one is keep your computer cool by keeping it dust free as well as ensuring that computer's cooling fans are blowing air in the right direction and not working against each other. देखिए, कंप्यूटर का एक कूलिंग फैन होता है, अगर आप लोगों ने उसका हार्डवेयर का थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो वो प्रॉपरली रन होता है या नहीं वो आप लोग देख लें। अगर नहीं हो रहा है तो यस ऑब्वियसली उसको जो है थोड़ा सा ठीक करके लेना होगा। इफ यू आर कैन डू इट एट योर लेवल यू कैन डू इट, बट इफ you are not able to do it, please go to your nearest computer maintenance services store and do it there. It is correct your computer maintenance at this shop if you are not able to do that. Then next one is as we have mentioned earlier, that is keep foods and beverages away from the desktops and laptops. अगर कुछ खाने की चीज हो जनरली आप लोगों को कंप्यूटर से दूर रखनी ही चाहिए। एंड यस ऑब्वियसली और यू कैन ऑर्गेनाइज योर कोड्स एंड अदर ई डेब्रिस देयर। आपका कंप्यूटर जो है हमेशा नीट एंड क्लीन प्लेस पे रख दीजिए। एंड यस उसका प्रॉपर जो है उसके कॉर्ड्स जो है कुछ प्लग्स जो है वो प्रॉपरली अरेंजमेंट करके रखिए, और उसको भी आप लोगों को रेगुलरली साफ करना चाहिए। देन if you are going to use the UPS and the batteries, just ensure that they are of the good quality. So typical UPS is going to protect a computer for over voltages as well as the under voltages. UPS, that is what universal power supply. So generally over voltage and under voltage से क्या होता है, आपके कंप्यूटर का जो है वो डैमेज जरूर हो सकता है। So try to use the good quality of the UPSs.
ओके, देन डोंट ब्लॉक द वेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। कंप्यूटर के जो वेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक ना करें, और उसको ट्राई टू हैव दी more and more air flowing through your all the sockets and all the ports of the computer or laptops there. And obviously keep magnets away from your laptops and computers so that magnets जो हो जाते हैं, क्या होता है, yes obviously computers of the metals also, and then magnets are also there of there. इससे क्या होता है जनरली, मैग्नेट्स जो है, ऐसे हो सकता है कुछ चीजें जो है वो मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हो जाती है तैयार, और उससे क्या हो जाता है, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप की जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम स्पैन है, वो कम हो जाता है. सो यस ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कीप योर बी केयरफुल विद योर अनफैमिलियर वाईफाई नेटवर्क. जनरली क्या होता है, अगर आप नई जगह पर जाते हो तो वहां पर फ्री वाईफाई होता है, तो आप लोग ज्यादातर उसको यूज करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो फ्री है, बट इट मे बी डेंजरस, सो दैट वाईफाई से जनरली वायरस जो है वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाता है. सो इनफैक्ट नेवर यूज इट. जनरली आपका जो आपका पर्सनल अडाप्टर होता है, आपका पर्सनल जो डोंगल होता है, वो आप लोग यूज करें, दैट विल बी बेटर फॉर यूज इट. Then yes, obviously you have to shut down properly your computer or laptop डेली बेसिस पे. कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे ही कंप्यूटर चालू करके सो जाते हैं, दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस एट ऑल. सो कितना एक ही मिनट लगेगा आपका कंप्यूटर जो पूरे स्क्रीन जो है वो क्लोज कर उसको शट डाउन करने के. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. देन व्हाट इट इज मस्ट दैट इज रेगुलरली डिलीट अनवांटेड प्रोग्राम्स. सो अनवांटेड प्रोग्राम रेगुलरली डिलीट करने से क्या होता है, आपकी मेमोरी जो है वो मेमोरी स्पेस जो है वो फ्री हो जाती है, और उसके साथ साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अनवांटेड एंड नेसेसरी प्रोग्राम्स में हैव सम वायरसेस. कुछ ऐसे आप लोगों ने कहा सर कॉपी किया होगा तो वहां पर वायरसेस बहुत हो सकते हैं. सो जस्ट रेगुलरली डिलीट इट. देन व्हाट वी कैन से, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फाइल है या फिर सपोज कुछ बैकअप करना है, तो आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जा सकती है. सो इट इज बेटर आइडिया दैट इज यूज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर फॉर हैविंग सम बैकअप एंड एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज. Then yes, obviously get antivirus and anti-malware softwares regularly, but you choose carefully because in market there are so many antiviruses, so many anti-malware softwares available. But जो trustworthy है, जिसका कॉपीराइट होता है, जिसके कुछ लाइसेंस कॉपी होती है, वही आप लोग यूज करें. जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट से कुछ क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, सो दे मे बी हार्मफुल टू योर कंप्यूटर आल्सो. सो जनरली क्रैक्ड वर्जन जो है एंटीवायरस के और एंटी मालवेयर्स के, वो यूज ना करें. And yes, obviously you can run antivirus programs regularly on a daily basis also. So and antivirus के साथ साथ भी anti malwares होते हैं. So run anti malware programs regularly at specific intervals, that is once in a 2 days or once in a week. जैसे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, एंटी मालवेयर एंड एंटी वायरसेस प्रोग्राम्स जो है वो रन करने चाहिए. सो बी केयरफुल वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. देन नेक्स्ट थिंग हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, दैट इज सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग द कंप्यूटर. दैट इज ऑलवेज कीप योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम अपडेटेड. जैसे कि मैंने बोला था कि कैसे होता है, जनरली हम लोग कुछ नई टेक्निक जो है पुराने सॉफ्टवेयर में यूज करने के लिए जाते हैं तो वो नहीं यूज हो सकती है. सो इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू अपडेट योर प्रोग्राम्स and to update your softwares on regular intervals. And suppose in case of any problems and in case of any issues, despite all these tests what we have discussed, do not open your computer in any case or try installing new utility programs on your own. So rather than go for the help of the computer stations or computer services. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की आप शॉप में चाहिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, खुद से सारे चीज़ें जो है हैंडल करने की कोशिश कीजिए. जैसे कि कोई मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, आपका RAM नहीं चल रहा होगा, शायद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रही है, द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन सच केसेस व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो टू योर कंप्यूटर मेंटेनेंस शॉप्स नियर बाय यू एंड ट्राई टू हैव द फुल चेकअप ऑफ योर कंप्यूटर्स. ठीक है. सो कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन, सो इट इज ऑल्सो हैविंग सम लिमिटेशंस. So these are the basic guidelines, general guidelines for computer maintenance. Just try to use these guidelines properly and try to have it. So अभी हम लोगों ने guidelines जो देखे कुछ भी, जैसे कि मॉनिटर क्लीन करें, एंटीवायरस यूज करें, प्रॉपरली क्लीनिंग करें, देन डोंट ओवर चार्ज योर लैपटॉप बैटरीज. उससे लैपटॉप बैटरी से क्या होता है, देखिए ओवर चार्ज करने से
उसकी जो टाइम स्पेन होता है बैटरी का लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ओवर चार्ज और अंडर चार्ज करने से ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस स्केड्यूल। अभी मेंटेनेंस आपको लोगों को करना है कंप्यूटर का, तो उसके लिए स्केड्यूल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है कंप्यूटर की क्लीनिंग जो है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस जो है वो आप लोग कर सकें। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर योर कंप्यूटर। सो अभी कंप्यूटर मेंटेनेंस में क्या हो सकता है, फिजिकल क्लीनिंग शेड्यूल हो सकता है, देन उसके बाद इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल हो सकता है, एंड देन बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल जो है वो हो सकता है। सो अभी इसको कैसे मेंटेन करना है हम लोग वो देखेंगे, दैट इज हाउ टू prepare this schedule. Firstly, that is make cleaning schedule for physical parts. So यहाँ पर फिजिकल पार्ट के लिए क्लीनिंग कैसे करनी है वो हम लोग देखेंगे। So firstly, in order to create your computer components, and you must have a schedule for physical cleaning of these. So firstly, what you can prepare a physical cleaning schedule, somewhat similar to the steps, like suppose clean external peripherals like keyboard, mouse, speakers, monitors, printers daily. Then you can clean the internal parts of your computer monthly. ठीक है, इंटरनल पार्ट्स जो है आप लोग मंथली क्लीन कर सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट जो है आप डेली उसको मेंटेन कर सकते हैं। देन दे परफॉर्म द इंटरनल क्लीनिंग ऑफ द पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड्स, माउस, इंटरनल monthly. Okay, so make sure that you are going to use the proper cleaning tools for all this, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर के जो फिजिकल पार्ट्स है वो आप लोग मंथली क्लीन कर सकते हो। सो लाइकवाइज यू कैन मेक द क्लीनिंग शेड्यूल फॉर द physical parts. Then next one is the make internal cleaning schedules. So in order to keep your computer clean and safe internally, you should prepare an internal maintenance schedule. Somewhat shut down your computer properly after every use. Then delete junk files weekly. Junk files जो होती है, then delete the temporary files weekly. Then you can empty the recycle bin weekly. Then use cleaning program like the CC Clean Cleaner to remove the unwanted files and folders. Then they run defragmenter utility monthly or once in or twice a month. ठीक है, डिफ्रैगमेंटर जो है वो क्या होता है, जो अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स जो है आपके कंप्यूटर के मेमोरी में जो क्रिएट हुए होते हैं उसको डिलीट करता है। सो इट इज बेटर आइडिया टू डिफ्रैगमेंट योर कंप्यूटर मंथली or once in the 2 months. Then next on what we can say, that make backup and update the schedule here. So there should be a proper schedule for taking backups and updating the software of your computer. So this schedule may be similar to likewise what we can say, that it taking backups weekly आप लोग आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम से उसका बैकअप ले लें। देन अपडेटिंग एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स डेली। एंटीवायरस और एंटी मालवेयर्स जो होते हैं उसको आपको डेली जो है उसको अपडेट करना चाहिए। देन आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स होते हैं, दैट इज लुकिंग फॉर द अपडेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैचेस डेली, वो भी आप लोग कर देन अप्लाइंग अपडेट्स एंड पैचेस एज एंड व्हेन अवेलेबल. So likewise, then applying the updates to regularly used programs such as browsers. Then आप लोग कोई रेगुलरली प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं तो उसके कंटिन्यूसली अपडेट्स जो है आपको लेने चाहिए. So likewise, you can prepare the maintenance schedule, likewise for cleaning schedule for physical parts, internal cleaning schedules, and backup and update schedules. So likewise, you can do all these things. Then the next point we are going to see, that is, which is the most important part, that is protecting computer against computer viruses. So यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर वायरस जो है उसके अगेंस्ट जो है कंप्यूटर का प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए. सो वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस. So what we can say, the computer viruses are malicious codes or programs that cause or damage to data files as well as operating system also. देखिए it is very important, yes, it is very important to protect your computer against the computer viruses as they might make your computer completely unusable. जनरली कंप्यूटर वायरस क्या करता है, एक मैलिशियस कोड और प्रोग्राम है, वो क्या करता है आपको आपके कंप्यूटर के डेटा को और फाइल्स को जो है वो डैमेज कर सकता है,
करता ही है वो डैमेज आपकी। अगर आपके पास एंटीवायरसेस होंगे तो वो डैमेज की जो हम लोग क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। या फिर आप लोग बहुत ही अच्छा लाइसेंस्ड कोई एंटीवायरस प्रोग्राम यूज कर रहे हो तो आपका एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर में अगर वायरस एंटर भी करना चाहे तो उसको वो डिलीट कर देगा। So what we can say that is going to cause damage to your data files and obviously your operating system also. So viruses can attack any part of a computer software such as what we can say the boot block is there, operating system is there, system areas are there, files and application programs, then macros and so on. जितनी भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी आपके कोड्स होते हैं, सो उस सबको क्या करता है जनरली ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है वायरसेस डायरेक्टली अटैक कर सकता है। सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दिस वायरसेस विच आर देयर टू अटैक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो पहला को होता है worms. So as per the name, what is worms? A worm is it is a self-replicating program which eats up the entire disk space or memory. And a worm is going to keep on creating its copies until the all disk space or memory is going to be full. देखिए वर्म जो होता है क्या करता है अपनी ही प्रोग्राम की कॉपीज बनाते रहता है और उसको क्या करता है आपकी प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है आपकी डिस्क की जो मेमोरी होती है वो पूरी की पूरी खा जाता है। सो आपके डिस्क में क्या होता है नई फाइल स्टोर करने के लिए आपको वहां पर स्पेस ही नहीं रहती है। सो दैट कॉजेस दी worm. So what is worm? Worm is a self-replicating program which eats up the entire disk space or the memories. Then next one is the Trojan horses. Yes. So what we can say the Trojan horse जो होता है Trojan horse is a program that appears harmless such as the text editor or the utility program but actually performs malicious functions such as deleting or damaging the files. If you are if you knew about the ट्रॉय सो ट्रॉय में जो हुआ था ट्रॉय की लड़ाई में जो हुआ था उसने ट्रोजन हॉर्स जो भेजा था। सो उससे क्या हुआ था उसको हम उन वहां के लोगों को क्या लगा कि बाबा ये सिंपली घोड़ा जो है हमको गिफ्ट किया गया था हॉर्स इज गॉड्स गिफ्ट। सो उन्होंने उसको अपने महल के दे हैव accepted that gift and they allowed to enter in their region in their territory. So उससे क्या हुआ ट्रोजन हॉर्स से क्या हो गए बहुत सारे जो उनके जो व्हाट वी कैन से उनके जो सैनिक थे वो बाहर आ गए और उन्होंने अटैक कर दिया। सो लाइकवाइज उसी का जो रेफरेंस लेके इन्होंने ट्रोजन हॉर्स जो ये वायरस का नाम लिखा है कि वो आते हैं आराम से उसको देख कर ऐसे कोई नहीं लगेगा कि वो जो है अपने कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं बट वो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर पर चुपके से अटैक कर देते हैं दे आर गोइंग टू डैमेज योर files or delete your files. So these are very dangerous for your computer. So this is one of the very dangerous virus for your computer also. That is nothing but the Trojan horses. So अभी हम लोग क्या देखेंगे the what are the damages that are going to be caused by the viruses. ठीक है viruses अटैक करते हैं पर उससे डैमेज क्या होता है। So first one is damage or delete the files. Yes. So ये क्या करते हैं जनरली viruses है some viruses may delete or damage some random documents or specified files that are crucial to your operating system. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है उसको डैमेज कर सकते हैं वायरसेस। देन द दिस डैमेज कैन रेंज फ्रॉम व्हाट वी कैन से इन द रेंडरिंग यूजलेस जस्ट अ फ्यू फाइल्स टू अफेक्टिंग योर एंटायर कंप्यूटर। सो इट इज गोइंग टू पॉसिबली रिक्वायरिंग यू टू रीइंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस स्क्रैच ऑल्सो। इससे क्या करते हैं वो लोग पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी डैमेज कर सकते हैं उसकी सारी फाइल्स डैमेज कर सकते हैं। सो उससे आप लोगों को क्या करना पड़ता है आपकी पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको रीइंस्टॉल करनी पड़ती है। सो दिस इज नथिंग बट द डैमेज विच इज गोइंग टू बी caused by the viruses. Then next one is it is going to slow down your computer. So obviously viruses can run in the background without being seen and may cause your computer to run extremely slow. उस आपकी कुछ कुछ वायरस इससे डायरेक्टली अटैक नहीं करते वो चुपके से जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रोजन हॉर्स जो है चुपके से आपको क्या करता है अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर पर। सो उससे क्या कर देता है जनरली वो आपके पीसी जो है आपका कंप्यूटर जो है वो टोटली स्लो डाउन करता है। सो दिस इज अनदर what we can say the disadvantage or damage which is going to be caused by the virus that is it is going to slow down your computer. Then next one is invade your email programs. So the some forms of viruses may break even if you are having some even more havoc
by spreading themselves to contact in your address books. सो व्हाट वी कैन से दैट दी आपके ईमेल प्रोग्राम्स जो है एड्रेस बुक्स में ये वायरस स्प्रेड हो जाते हैं, उसके कुछ कॉपीज जो है वो इंटरनेट पे स्प्रेड भी कर सकते हैं, आपके एड्रेस बुक के कुछ एड्रेसेस जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डैमेजेस विच आर गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द वायरसेस लाइक डैमेजिंग और डिलीटिंग योर फाइल्स, देन स्लोइंग डाउन योर कंप्यूटर as well as invading your email programs. So it is not like that. That is that not all the computer problems are going to be caused by viruses. ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे वायरसेस अटैक करके डैमेज कर सकते हैं, बट ऐसा हर बार नहीं होता है कि वायरस की वजह से ही आपके कंप्यूटर के जो प्रॉब्लम्स है वो occur हुए हैं. So if you are going to have the computer program if there is some particular program that is not running properly, उसको उससे क्या होता है जनरली सच देर आर सम एरर्स और बग्स. एप्लीकेशन के कोड्स में भी कभी कभी एरर्स होते हैं, एप्लीकेशन के कोड्स में भी कभी कभी बग्स होते हैं. बग्स मतलब इट इज सम टाइप ऑफ द एरर आल्सो और डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर्स. सो अगर या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुरानी है और आप लोग क्या कर रहे हो उस पर लेटेस्ट वर्जन का कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रहे हो. सो वहां पर क्या होता है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एरर, सो ड्यू टू मिस कॉन्फ़िगरेशन it is possible that that computer program is not going to be installed on your computer. सो ऐसे मत समझे कि हर बार वायरस की वजह से ही आपके कंप्यूटर जो है वो स्लो हो रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर में रन नहीं हो रहा है. इट इज नॉट ऑल द टाइम. कभी कभी कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर में ही एरर होते हैं, उसके जनरली क्या हम लोग बोल सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग अभी अगर आप लोग का कोई इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर दैट you are going to have some licensed or the legal copy of that particular program so that it will not cause error or it will not defect your computer programs to run. Okay, these are the some damages which are going to be caused by the viruses which we are seeing now. So the next point what we are seeing, that is scanning and cleaning the viruses. देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो विंडोज 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके, सो विंडोज 10 के साथ जो होता है वो बाय डिफॉल्ट विंडोज डिफेंडर प्रोग्राम जो है वो आता है एंड दिस प्रोग्राम से स्कैन्स एंड क्लीन योर कंप्यूटर्स एज पर द नेम डिफेंडर. ये आपको क्या करता है आपके कंप्यूटर को वायरस से डिफेंड करने की कोशिश करता है. उसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इन द मोर एडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम्स लाइक नॉर्टन एंटीवायरस इज देयर, then quick kill antivirus security is there, then Casper Sky and antiviruses are there. So all of these types of the some of the computer softwares which are used for the antiviruses. उसके बाद आप लोग नेट प्रोटेक्टर जो है वो भी यूज कर सकते हो to properly scan and clean your computers. So in this way you can have the scanning and cleaning of the viruses. देखिए अभी good computer antivirus program will kill most of the troublesome items. Like first one is the computer viruses. ठीक है, computer viruses are nothing but what malicious programs which are written specifically to cause damage to the data. जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया. Then worms are programs written to eat up the disk space. डिस्क स्पेस जो है वो worms क्या करते हैं पूरे के पूरे खा जाते हैं. Then next one is the malware. So malware is what? It is the any type of program with malicious intent such as spying, then posting unwanted ads etc. ठीक है, कुछ अनवांटेड थिंग्स है जो है वो क्या करता है malware जो है वो अटैक कर देता है. देन नेक्स्ट वन इज द स्पैम फाइल्स. देखिए स्पैम फाइल जो आपके मोबाइल पे भी ज्यादातर अटैक करती है. सो इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और द जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग और एनी अनसॉलिसिटेड ईमेल इज नथिंग बट द स्पैम फाइल्स. कुछ ऐसे ईमेल आईडीज होते हैं जहाँ से वो क्या होते हैं स्पैम्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं ईमेल आईडी में जाती है. अगर आप लोग उसको ओपन करना चाहेंगे तो वो क्या कर देता है सम एक वायरस जो है वो ओपन कर देता है और आपके पीसी में जो या फिर आपके मोबाइल में वो स्प्रेड करता है. और देयर आर सम चांसेस दैट वो आपके ईमेल के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डिलीट भी कर सकता है. सो स्पैम्स आर आल्सो डेंजरस फॉर योर emails also. Then next one is the temporary files. So
Temporary files are what? The files which are created by the what we can say, the applications and programs for internal usage while working. So these are no use when application program is closed. So temporary files जो है वो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है. I will show you in today's lecture also what are the temporary files also. Then next one is the junk file. So junk file, what is junk file? Junk file is a general name for the temporary files or old program setup files. And obviously some cache thumbnails are also, and other bits of the digital what we can say details and pile up over the time. So यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अभी, वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द स्टेप्स टू हाउ टू डिलीट द टेम्पररी फाइल्स. देखिए टेम्पररी फाइल्स के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम लोगों ने वहां पर देखा था लास्ट लेक्चर में हाउ टू यूज सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट. सो आई विल यूज द कमांड फॉर्म. यहाँ पर पहले ही ओपन है, अगर नहीं ओपन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च हियर CMD. देखिए CMD टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया. अगर आपको वैसे भी नहीं पता है, आपको क्या कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, विंडोज एंड आर. यस, विंडोज और ऑल अल्फाबेट जो है आपको यूज करना है एंड ओपन CMD. ओके, ठीक है. सो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग टेम्पररी फाइल्स जो है वो यूज डिलीट कर सकते हैं. और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए विंडोज और आर दबाऊंगी और यहाँ पर मैं परसेंट टेम्प, देखिए %temp% ये कमांड जो है वो ओपन कर दूंगी. ठीक है, ओके. सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर बहुत सी टेम्पररी फाइल्स जो है वो, देखिए कितनी सारी टेम्पररी फाइल्स है. देयर आर 539 एटम्स आर देयर. सो व्हाट आई विल डू, अभी मैं क्या कर देती हूँ, ये पूरी की पूरी टेम्पररी फाइल्स जो है वो टोटली डिलीट कर देती हूँ. ओके, सो आई विल डिलीट दिस. देखिए कितनी सारी टेम्पररी फाइल्स जो है यहाँ पर आपकी डिलीट हो रही है. ओके, सो आई विल स्किप सम ऑफ दी. ठीक है, अब ये जो है परमानेंट फाइल से वो डिलीट नहीं होती, या फिर आप मेरा जो अभी प्रोग्राम ओपन है उसकी वजह से कुछ फाइल्स जो है वो डिलीट नहीं होंगी. ठीक है, ये हो गया हाउ टू डिलीट द टेम्पररी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर. आई विल रिपीट, हमको लोगों को क्या करना है, हम लोगों को विंडोज आर रन करना है, %temp% करके वो टेम्पररी फाइल्स जो है वो डिलीट करनी है. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए विंडोज डिफेंडर जो है वो कैसे यूज करना है वो देखेंगे. ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आई विल गो टू दी सेटिंग्स. ठीक है, सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे. सो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस होते हैं. देखिए पर्सनलाइजेशन, एज ऑफ एक्सेस, देम टाइम. सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी. यहाँ पर जाके देखेंगे. So if you go here, what we can see, there are so many options available there, that is Windows Update, Windows Security there. So अभी हम लोग यहाँ पर Windows Security में जाएंगे, and yes, obviously we can go to the Windows Security, then firewalls and network protections are there, then virus and threat protections are there. देखिए बाय डिफॉल्ट जो है वो सारे जो है ऑन हो चुके हैं यहाँ पर. सो विंडोज में बाय डिफॉल्ट जो है होते हैं ऑन होते हैं. सो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑप्शन. जैसे कि मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में डिफेंडर ऑप्शन जो है वो पहले से मौजूद है. ठीक है, अभी इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियड स्कैनिंग जो है वो ऑन कर सकते हैं. यस, यू वांट टू ऑन दिस, दैट यू वांट टू अलाउ दिस ऐप to make changes to your device. If I am going to say yes, then you can keep your using your current provider and Microsoft antivirus periodically check for the threats. So for now मैं by default जो उसकी सेटिंग वो कर दूंगी. उसके साथ साथ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन. अगर कोई करंट थ्रेट है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्विक स्कैन कर लेते हैं. क्विक स्कैनिंग में वो क्या कर रहा है, आपके जो कंप्यूटर की स्कैनिंग पूरी करके ले रहा है, एंड इट विल टेक सम टाइम. और यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग देखिए वो भी आपको दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड टाइम जो है आपको कितना लगेगा. तो
सो दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके पूरा पीसी जो है वो स्कैन कर रहा है और उसके बाद आपके वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन जो है वो टोटली स्कैन करके देगा. सो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो देयर, देन फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन इज देयर. सो फायरवॉल जो होती है वो क्या करती है, जनरली एक जैसे कि आपकी दीवार वॉल, वैसे एक फायरवॉल होती है जो इंटरनेट पे अगर आप कुछ इंटरनेट से कुछ वायरसेस आपके किसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको क्या करती है, वो डिफेंड करती है. दैट इज नथिंग बट द फायरवॉल. So this is one account protection is there. Then this is what app and browser control is there. Then device security is there. So all of these things are readily available. अभी आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ. सो इट इज शोइंग ऑल दिट इज नो इश्यूज मीन सब ठीक ठाक अभी फिलहाल तो चल रहा है. ठीक है. सो लाइकवाइज व्हाट वी कैन हैव, देखिए अभी भी क्विक स्कैन जो है वो चल रहा है. सो इसका कुछ एस्टिमेटेड टाइम है, वो कंप्लीट होने के बाद ही वो क्या करेगा, आपको एक स्टेटस जो है उसको दे देगा. उसको कैसे करना है और क्या करना है, दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन इट. ठीक है. सो लाइकवाइज व्हाट यू कैन सी, you can have the different options which are available for avoiding the virus and threats. Okay, so I hope you understood all this thing. If you are see the process is still going on, इसने देखिए कितनी सारी फाइल्स जो है स्कैन कर दी, दैट इज 3. यस, देखिए स्कैन जो है कंप्लीट हो गया है. द स्कैन लास्टेड फॉर 2 minutes and 1 second. सो 0 threads found मींस अभी क्या कर रहा है, स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. देयर आर 3382 फाइल्स आर स्कैन. सो यू कैन सी व्हाट द virus and threat protection of the Windows security can done, that is device security is there, and all these things can be used for avoiding the virus to attack on your PC. तो देखिए छोटी छोटी चीजें जो है आप लोगों को यूज करनी है whenever you are going to have something which you can use for the avoiding viruses attacks from your PC. So the book which I have referred for today's session is Information Technology by Sumita Arora for class 10th. So students, that's all for today's lecture. If you want some sessions regarding antiviruses on programs, please write in the comment box. So that's all for today's lecture. We will meet in the next session. Till then, bye.